हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग PYQs केमिकल बॉन्डिंग के करेंगे क्योंकि चैप्टर हमारा हो चुका है ख़त्म। और इसको मैंने 2 पार्ट्स पे डिवाइड करा है क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। सो फर्स्ट 15 आई एम टेकिंग टुडे। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, अमंग्स द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम इन इट्स आउटरमोस्ट शेल इज। सो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। NH3 में होते हैं, AlCl3 में नहीं होते हैं, BeCl2 में नहीं होते हैं, CCl4 में होते हैं, PCl5 में नहीं होते हैं. So what is going to be the correct option over here? C. AlCl3 में, just for your reference, there are going to be 6 electrons in the outermost shell. BeCl2 में there are going to be 4 electrons, and PCl5 में there are going to be 10 electrons. Moving on to question number 2. In PO4 3 negative ion, the formal charge on each oxygen atom and PO bond order respectively are what? So let's calculate the formal charge on oxygen. So formal charge अगर आप ऑक्सीजन में देखोगे तो टोटल चार्ज कितना है? -3. तो अगर -3 है तो एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू -3/4, विच इज इक्वल टू -0.75. और पीओ बॉन्ड ऑर्डर जो आपका होगा, दैट कैन बी कैलकुलेटेड एज टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स upon total number of resonating structures. Total number of resonating structures. In order to do this, we should know the structures of phosphate ion. So let's see what is the first structure. There'll be 4 resonating structures as there are 4 oxygens. So P double bond O, O negative, O negative and O negative. सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा क्या आ जाएगा? P double bond O, O negative and O negative. Third resonating structure would be P, O negative, double bond O and O negative. And the fourth resonating structure would be P, double bond O, O negative and O negative. So 4 resonating structures हैं. And what are the total number of bonds? There are 5 number of bonds, right? 1, 2, 3, 4 and 5. तो कैसे हम इसको फिर डिसाइड करेंगे? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स दैट इज इक्वल टू 5 divided by total resonating structures, which is 4, and the answer is 1.25. So let's see if we have an option like this. -0.75 and 1.25. The correct option over here is going to be A. Moving on to question number 3. Among LiCl, BeCl2, BCl3, CCl4, the covalent bond character follows in what order? So Fajan rule पे है ये. Charge or size of the cation, both are involved, right? So over here, अगर हम लोग move करते हैं along a period, that is from lithium to beryllium to boron to carbon, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड क्लोरीन डिक्रीज करेगा. ठीक है. और जो कोवलेंट कैरेक्टर है वो होगा इंक्रीज. सो लिथियम का कोवलेंट कैरेक्टर सबसे कम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन और फिर कार्बन. सो द करेक्ट ऑर्डर ओवर हियर, दैट इज गोइंग टू बी सी. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. Which one of the following formulae does not correctly represent bonding capacities of two atoms involved? तो compounds जिनके पास ions है same charge के, right? If you're talking of this, तो इधर अगर हम लोग देख रहे हैं ये सारे के सारे, तो ये वाला जो कार्बन एटम है इसकी वैलेंसीज चेक करो. 1, 2, 3, 4 एंड 5 वैलेंसीज इसकी आ रही है, राइट? तो ये करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है. दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन.
Let's move on to question number 5. Among the following, which compound will show highest lattice energy? अब लैटिस एनर्जी अगर सेम चार्ज है तो लैटिस एनर्जी इंक्रीज करती है एज द साइज ऑफ द आयन डिक्रीजेस. लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज इफ द चार्ज इज सेम. ठीक है, तो लैटिस एनर्जी किसकी सबसे ज़्यादा होगी? NaF की सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी. द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज गोइंग टू बी बी. क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर. अब इसमें आपके पास अगर आप ये क्वेश्चन देख रहे हो कि इसको हम एलिमिनेशन से करेंगे. 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कैन बी ड्रॉन फॉर ओजोन. दिस इज करेक्ट. BF3 हैज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट. BF3 का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, तो ये इनकरेक्ट है. BF3 has non-zero dipole moment is incorrect. Dipole moment of NF3 is greater than that of NH3. This is also incorrect. 3 canonical forms can be drawn for CO3 2 negative. तो CO3 2 negative के हम लोग कितने कार्बोनेट आयंस के कितने ड्रॉ कर सकते हैं? 3 canonical forms can be drawn for carbonate. Yes, this is correct. ओजोन का, अब ओजोन और इसमें देखो एक बारी 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स. ओजोन के हम लोग 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज गोइंग टू बी डी. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट्स फॉर द फॉलोइंग. नाउ द डाइपोल मोमेंट्स जो है दैट इज एज अ रिजल्ट ऑफ पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन अराइज होती है इन हीट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल. ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तभी देयर इज गोइंग टू बी डाइपोल मोमेंट. ओके, तो अब अगर यहाँ पे देखते हैं तो करेक्ट ऑर्डर क्या आएगा? HF सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, देन इट इज NH3, देन इट इज H2S एंड लीस्ट इज CH4. करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज डी. CH4 में जो उसका स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, वो भी उसके डाइपोल मोमेंट को कर देता है कम. क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर इन नेचर? तो ये तो आप कर सकते हो. नॉन पोलर कौन सा है? SbCl5 is going to be non-polar in nature. Okay, let's go on to question number 9. Which of the following sets will have a zero dipole moment? अमोनिया का जीरो नहीं होता है. BeF2 का जीरो हो सकता है, वाटर का नहीं होता है. 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, इसका भी जीरो हो सकता है. सो व्हाट इज will have a zero dipole moment? That is what the question is. बोरोन डाइफ्लोराइड का नहीं होता, अमोनिया का नहीं होता, वाटर का नहीं होता, और 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन का होता है. बोरोन ट्राइफ्लोराइड का होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड का नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन का नहीं होता. देन नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड का नहीं होता, बेरिलियम डाइफ्लोराइड का होता है, वाटर का नहीं होता, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन का भी नहीं होता. सो लास्ट रह गया आपके पास बोरोन ट्राइफ्लोराइड यस, बेरिलियम डाइफ्लोराइड यस, कार्बन डाइऑक्साइड यस, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन यस. सो द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज डी. लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज द मोस्ट प्रेफर्ड and hints of lowest energy of sulfate. Now over here अगर आप देख रहे हो तो सल्फेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स जो है वो इस वाले में है 1 2 3 4 5 6, and it also has p pi t by bonding, p pi d by bonding. Therefore this structure is most preferred. Okay, and lowest energy इसकी होती है. Let's move on to question number 11. The correct order of increasing bond angles in the following triatomic species. अब बॉन्ड एंगल्स आपको फाइंड करना है. तो बॉन्ड एंगल्स जो होते हैं नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O with a negative sign, इसका जो बॉन्ड एंगल है that is going to be 115. Okay, there is lone pair bond pair repulsion over here. फिर उसके बाद NO2 सिंगलेट इलेक्ट्रॉन सिस्टम है. The repulsion over here
is going to be less. So the bond angle is more, 134. और जो NO2 पॉजिटिव है, this is the structure for NO2 positive. The bond angle over here, the repulsions are minimum, therefore the bond angle is maximum. So increasing bond angle अगर आप कर रहे हो तो NO2 नेगेटिव का सबसे कम, फिर उसके बाद NO2 का, और फिर उसके बाद NO2 पॉजिटिव का. करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज गोइंग टू बी डी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ अमंग द फॉलोइंग. अब CO बॉन्ड लेंथ जो होगा, अगर आप कार्बोनेट आयन का यहाँ पे देखोगे तो देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड. ओके, सो उसकी जो बॉन्ड लेंथ है CO3 2 नेगेटिव की बॉन्ड लेंथ, दैट शुड बी maximum due to resonance. Okay, so the correct option over here is going to be C. CO की सबसे कम, क्योंकि CO का C triple bond O, this is the structure. CO3 2 negative का structure is C double bond O, O negative and O negative. And carbon dioxide का structure is C double bond O and double bond O. ओके, सो सबसे ज़्यादा हम बोलते हैं कि जितना ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होता है एक रेजोनेंस हाइब्रिड में, उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होती है. तो CO की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, फिर उसके बाद CO2 की, और सबसे ज़्यादा इट इज़ गोइंग टू बी CO3 2 नेगेटिव. राइट, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13. The electronegatividity difference between N and F is greater than that between. There is some mistake, typing error over here. Nitrogen and hydrogen. Yet the dipole moment of ammonia is larger than NF3. Why this is happening? So this is happening because in ammonia the atomic dipole and bond dipole are in the same direction, whereas in NF3 they are in the opposite direction. So this is the correct option. So if you're looking at the structures over here, ये आ गया आपके पास लोन पेयर, फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन. ठीक है, और ये डायरेक्ट हो रहा है टुवर्ड्स द ऑपोजिट एंड. Whereas NH3 में they are all in the dipoles are directed in the same direction. So the correct option over here is going to be C. Let's move to question number 14. The correct order in which OO bond length increases in the following. O2 में जो bond length होती है, that is 1.21 Armstrong. H2O2 में 1.48 Armstrong. और ओजोन में 1.28. Okay, so the correct option over here is going to be D. Let's go on to question number 15. H2O is dipolar whereas BeF2 is not. Why it happens? क्यों ऐसा होता है? Because of the structure. BeF2 का जो structure है, that is linear. So the dipoles are in opposite direction. They cancel the dipoles, therefore it is 0. Whereas H2O has a bent structure with a lone pair of electrons over here. So iska dipole is not going to be equal to 0. So H2O is angular and BeF2 is linear. This is going to be the correct option. So I shall see you in the next class with the next set of questions. Till that time,
Keep revising. See you soon.